Okay, dear students, today I will start the chapter 2, plants. Topic is seed dispersal. We have completed few topics like how do plants prepare food, reproduction in plants through different types, through seeds and through reproduction in plants through seeds and different parts of plant. Last day I have taught you. And we have to discuss about the reproduction through root. roots. Sorry, reproduction through leaf. Leaf. It was completed last day. It was completed. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have to discuss about the seed dispersal. Seed dispersal today I will teach you this topic. And Yes, reproduction through reproduction in plants topic has completed. Yes, ma'am. Let's study about the seed dispersal topic. Dispersal. Abhyashri. Unmute yourself. Yes, ma'am. So tell me the meaning of dispersal. I have told you first day in this chapter in offline class. Tell me about the dispersal meaning. Meaning of dispersal. चलिए बताइए. Abhyashri. Yes, ma'am. The transfer of seed to place allow from this to another. फिर पढ़ रही हो. Say yourself. Yes, ma'am. खुद से बोलिए. Yes, ma'am. मैम आपको होमवर्क भी दी थी कि लर्न कीवर्ड्स ऑफ द चैप्टर. I know, dear. Yes, Abhya. How many students know the meaning Yes, of? ma'am. The transfer of Raise your. ma'am. The transfer of seed. You are reading. You are reading. Angel raised hand. No, ma'am. So look at me. If you are not telling, so look at me. मेरी तरफ देखिए और आंसर कीजिए. अगर आप देख कर रीड नहीं कर रहे हो, चलो बताओ. आभ्या. Meaning of dispersal. Yes, ma'am. The transfer of seed place from the mother plant. यही है. Place कहाँ? From the mother plant. Place away from the mother plant. मैम may I say? Yes, Anjal. Ma'am, transfer of seed place away from the mother plant. Yes, very good. Kumar Archit. Archit, you are in the class or you are showing only ID or name? Turn on your camera. No one is present. कोई भी present नहीं हो क्लास में? आराध्या राज, आयुष कुमार, विनीत राज धोनी, विनायक राज. Means every facility you will get from the parents, but you are not any try to learn and not replying anything. Why? क्या हो गई? रिप्लाई कीजिए विनायक राज. No. Abhimanyu. Yes, ma'am. What do you mean by this dispersal? Dispersal, tell me. Ma'am,
Ma'am, the मैम transfer. विनायक बता रहा है, अभिमन्यु नहीं। Abhimanyu, I know, dear. Yes, Abhimanyu. Unmute yourself. Unmute yourself. पहले unmute कीजिए. The transfer of feed the transfer of feed to play the transfer of feed to play phase away from the mother plant. Okay. मैं पूछ रही थी डिस्पर्सल, आप लोग सीड डिस्पर्सल बता रहे हो, ठीक है। आप लोग को नोटिस मिलती है डिस्पर्सल और अराइवल? Yes, ma'am. उससे भी आप बता सकते हो ना, वो भी हिंट से। डिस्पर्सल मीन्स होता है छूटना, दूर होना, ठीक है, अलग होना। ये भी बता सकते हो। आपको भी नोटिस मिली होगी डिस्पर्सल एंड अराइवल टाइम, मिलती है ना, स्कूल से नोटिस मिलती है। अराइवल टाइम इज 7:30 और 6:30। डिस्पर्सल मीन्स छुट्टी का टाइम, मीन्स स्कूल से फिर दूर होना, अलग होना। दैट इज सेम मीनिंग डिस्पर्सल, बट हियर इट इज रिटन सीड। सो व्हाट आई मीन बाय सीड? ये सीड क्या है? अब सीड का डिस्पर्सल आपको जानना है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ सीड to places away from the mother plant means सीड का जो ट्रांसफर होता है ना, एक जगह से वो दूर हो जाता है। मीन्स वो जगह कौन सी होती है उसकी? मदर प्लांट, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे रोज प्लांट है, अब सपोज उसकी सीड कहीं से मिल गई। रोज प्लांट तो उसे लगाया जाता है स्टेम से ना, उसकी स्टेम रखते हैं। सीड वाले वैसे कोई प्लांट्स बताइए। गिव मी एग्जांपल, एनी सीड प्लांट, सपोज कोकोनट। गिव मी एनी एग्जांपल। एग्जांपल नहीं पता? मैम मैंगो ट्री। सही, गुड, मैंगो ट्री। मैम किस चीज का? सीड, मैंगो ट्री की, मैंगो की सीड आपने देखा है इतना सा। डिस्पर्सल मींस ट्रांसफर ऑफ सीड टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द मदर। ये मदर प्लांट जो होता है, सपोज आपकी मैंगो ट्री है, ठीक है, वहां पे आम गिर गई, मैंगो गिर गई, ठीक है। वहां पे गिरने के बाद वो सूख गए, ड्राई हो गए, और उसके बीज जो है, या तो एनिमल्स और एनी एयर, एनी बर्ड्स उसे उठाकर किसी दूसरे जगह पे ले गए। वही कहलाती है ट्रांसफर ऑफ सीड टू प्लेसेस अवे। उस जगह से वो दूर हो जाना, अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। उसकी प्लांट यहाँ लगी है, यहाँ उसके सीड गिरे, ठीक है। उसके बाद इसे कोई बर्ड्स इसे या तो फिर उठाकर ले गए, या फिर एनिमल्स के थ्रू इसकी ट्रांसफर हो गई। इस जगह से वो इस जगह पे आ गया। फाइन, अब यहाँ पे इसकी प्लांट्स ग्रो कर रही है। अंडरस्टूड? ये हो गई ट्रांसफर ऑफ सीड्स। और इसके मीडियम्स होते हैं जिससे वो ट्रांसफर होती है। वो मीडियम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लुक एट द बुक, पेज नंबर 20। सीड डिस्पर्सल, स्टूडेंट्स का डिस्पर्सल टाइम स्कूल में होती है। मींस आप लोग को स्कूल से फिर छुट्टी होती है, तो यहाँ पे सीड की डिस्पर्सल, उसकी भी ट्रांसफर, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएंगे, होती है ना। ये वर्ड आपको मैच कर रही है, डिस्पर्सल मैच कर रही है। से एवरीवन स्टूडेंट्स। मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गई, सेम हो गई। Yes, ma'am. सीड डिस्पर्सल एंड स्टूडेंट्स डिस्पर्सल टाइम।
मीन्स आपकी ट्रांसफर मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने का टाइम, और यहाँ पे सीड को एक जगह से अपने मदर प्लांट से वहां पे दूसरे जगह वो कैसे ट्रांसफर होती है। We know that flowers produces fruits and most fruits bear seeds. You know that बहुत सारे ऐसे plants हैं जो fruits देते हैं, they produce fruits and fruits bear seeds. Fruits bear seeds means ऐसे बहुत सारे plants होते हैं जो fruits देते हैं और उसके साथ साथ fruits के साथ साथ उनके अंदर seed भी होते हैं like papaya, mango, लीची, ये सारे होते हैं ना। मैम वाटरमेलन, watermelon, pomegranate, these all are bear seeds. ये seeds इसके अंदर होती है, okay? However, all seeds of a given plant do not germinate near the mother plant. सारे seeds जो है, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plant. सारे जो seeds होते हैं वो अपने mother plant के पास ही नहीं grow करते, उसके dispersal होती है। यहीं पे ये लिखा गया है, all seeds are not germinate near their mother plant. Near their mother plant. ये इसकी मदर प्लांट है, क्या यहाँ पे ये खिल रहे हैं या बड़े होंगे? नो, इसकी डिस्पर्सल हो जाती कहीं अदर प्लेस पे, ओके? This is because they will then have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrients, and many of them would die. Means इसी वजह से क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे सीड जो होते हैं उन्हें एप्रोप्रिएट फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाती, डेवलप नहीं हो पाती है सीड वो प्लांट्स में, उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है। दिस फेवरेबल कंडीशंस आर, डू यू नो, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। अगर ये प्लांट्स को नहीं मिले तो क्या वो ग्रो कर पाते हैं? नो ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गई, कह रही है बातें यहाँ पे कि जो सारे सीड्स होते हैं मदर प्लांट्स के पास वो ग्रो नहीं करते हैं, वो क्या हो जाती है, उनकी डिस्पर्सल हो जाती है और उन्हें एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर, एयर नहीं मिल पाती है और सनलाइट, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सीड्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आई? यस मैम। उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिल पाती है। Nature therefore enables the seeds to move over the other places. क्या होती है, ये नेचर में है कि कुछ ऐसे सीड्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाती है, अलग हो जाती है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव कर जाती है। It does so through various agents. इसकी वो कैसे होती है? आप लोग कहते हो हम लोग को आवाज आती है ना, हम लोग कैसे सुनते हैं? Through medium. Air is a medium by which we can listen any sounds. हम लोग कैसे सुनते हैं कि कोई एक माध्यम, कुछ एक वजह, मीन्स हम लोग को अगर बात करना होता है, अभी हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है, किसके मीडियम, किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू चल रही है ना। तो Yes, आप ma'am. यूज करते हो ना मीडियम या थ्रू। Yes, ma'am. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रही है एजेंट्स। आपकी जो ये सीड है उसकी डिस्पर्सल कैसे हो रही है? ड्यू टू एजेंट्स। वो एजेंट्स होते हैं, आप लोग एजेंट्स देखे हो ना, एजेंट्स का नाम आप सुने हो ऐसे डेली लाइफ में, बता सकते हो कहाँ पे सुने हो आप लोग एजेंट्स? मैम जहाँ पे जमीन का काम होता है वहाँ पे एजेंट्स का नाम हम लोग सुनते हैं अक्सर। LIC में सुने हो एजेंट्स? यस मैम। यस मैम। आप लोग डायरेक्ट वहां पे नहीं जाते हो, आपके पास वो आते हैं एजेंट्स, ठीक है? वो आपके पास से वो मनी को कलेक्ट करते हैं, वो एजेंट्स आते हैं। आपको डायरेक्ट वहां पे नहीं जाना होता है, सारे सिस्टम को वो बीच में आकर वो आपको बताते हैं, वो एजेंट्स हो गई। लेकिन यहाँ पे एजेंट्स क्या है आपके प्लांट्स चैप्टर में, जैसे एक मीडियम हम लोगों ने यूज किया, वो मीडियम हमारा क्या है? इंटरनेट, बाय विच वी आर डूइंग ऑनलाइन क्लास, बाय विच वी मीन्स आई एंड यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ, मीन्स थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम लोग एक दूसरे को देख भी सकते हैं, बातें भी हो सक रही है ना?
उसी के जैसे ये जो थ्रू वर्ड है, मीडियम वर्ड है, वैसे यहाँ पे एजेंट्स यूज हो रहे हैं वर्ड। इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट्स, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स होते हैं सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स। मैंने बताया था अभी, ये सारे मीडियम्स, ये सारे एजेंट्स के थ्रू आपकी सीड की डिस्पर्सल हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे अगर हवाएं चलेगी ये सीड सूख जाएंगे, अगर हवाएं तेज आंधी चली तो ये उड़ के कहीं और चली जाएगी। ये अपने मदर प्लांट से ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा? वेयर आर यू? रिप्लाई एवरीवन। ऐसा हो सकता है तेज हवाएं Yes, चले और ये सीड एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाए। Yes, ma'am. सो Ma'am, एजेंट्स yes, क्या हो गए यहाँ पे? व्हाट इज द नेम ऑफ एजेंट्स हियर? air. Air. If birds are flying and sitting over the tree, then if birds can pick this seed of mango and transfer from this place to other place. So which is the medium? कौन से एजेंट्स हो गए? बर्ड्स, अभिमन्यु, एंजल, विनायक, आयुष, आराध्या, क्या हुआ? फिर इंसेक्ट्स हो गई, बर्ड्स हो गई। यहाँ पे अगर उसे बीज को उठाकर वो अपने बीक में पकड़ के दूसरी जगह पे अगर उनसे गिर गया तो वो अलग हो गई। ये सिर्फ डिस्पर्सल की एक एजेंट्स होते हैं बर्ड्स। फिर एनिमल्स, सपोज आप देखते हो ना बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं तो कुछ कुछ उठाकर लेकर वो चले जाते हैं यहाँ से लेकर वहां तक। अब उनके लायक नहीं रहता है तो वो छोड़ देते हैं कहीं पे, ठीक है? कभी वो सीट तो लेते नहीं है। मीन्स काउ, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ काउस, buffaloes, goat. These all are the animals by which seed can dispersal from seed can transfer one places to another. Okay, these are the agents. Agents हो गए इसके ट्रांसफर में कौन कौन से? एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, etc. Can you tell me how water is agents in transfer of seeds? Water कैसे है? Hello everyone. Ma'am, क्या? मैं Yes, ma'am. yes. Where are you all of you? Turn on your camera. बताइए. Angel, sit properly in the class. Ma'am, मैम जब वाटर बहता है तो उसके साथ स्पीड भी बहकर चला जाता है। यस, अगर रिवर में अगर सीड गिर गया, सपोज कोकोनट ट्रीज, वो कोस्टल एरियाज में होती है, आपने देखा है ना, कोस्टल एरियाज में समुद्र के किनारे होती है, और उससे बहते बहते वो कहाँ चला गया? कहीं मीन्स अदर सी शोर पे चला गया, समुद्र के किनारे पे चला गया। उस जगह से वो ट्रांसफर होते होते, मूव होते होते वो दूसरे किनारों पे पहुंचा। तो ये वाटर इज ऑल्सो एन एजेंट बाय विच seeds can move from one places to another. Okay, so that's why it is written here water is an agents. Understood? वाटर को भी यहाँ पे एजेंट्स कहा गया। समझ में आई आकाश? आकाश, Yes, ma'am. समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So these all are the agents by which seeds can transfer from one places to another from their mother plants. Okay. और ऐसा नहीं कि सारे सीड डिस्पर्सल हुए तो वहां पे वो ग्रो करके उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं मिल पाती है। अप्रोप्रिएट मीन्स उसे जैसा मिलना चाहिए, एयर, वाटर, टेम्परेचर, वो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं हो पाती है, वो प्लांट्स नहीं बन पाती, वो सीड में ही, वो मिट्टी के अंदर ही वो डाई हो जाती है। ओके,
They all help in transfer of seeds to different places. The process of transfer of seeds to different places is called seed dispersal. So you will write in homework, remember definition of the seed dispersal. Definition of, remember definition, okay? याद करोगे definition, लिख लीजिए कहीं पे, write anywhere in your copy or any books with pencil. If you will not reply in the class, you will get punishment. You will get punishment that time. We now discuss in some detail about the different methods of seed dispersal. We have just introduced about the seed dispersal. Okay? Now we will learn in details about the seed dispersal. Different ways of seed dispersal. Human made ways. First way क्या है आपकी? Human made ways. Okay. Read. Vinayak, read this line. Page number 20. Read करो Vinayak. Ma'am, after Vinayak, may I read? I will take name. Don't worry. Vinayak, read the page number 20. Different ways of seed dispersal, human made ways. इसे read करो. विनायक म्यूट है आपकी माइक. नो मैम, वो म्यूट है. आवाज नहीं आ रही है. मैम, लगता है वो ब्लूटूथ कनेक्ट किया हुआ इसलिए. हाँ तो आवाज आनी चाहिए ना. आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस विनायक. मैम वो पढ़ ही नहीं रहा है. Yes, human made ways. Read Vinayak. Read करो. Human select seed of useful plant and snow them Snow. in the Snow कैसे बोल रहे हो? It is written here so. SOW. SOW, and you are saying snow. So, in the soil, to get new plant. You must have seed, farmer soil, seed to different usually useful plant like wheat, maize, maize and mustard. Good. Now read Akash Kumar, natural ways. Akash, Yes, ma'am. page number 21, first line, natural ways. Yes, ma'am. Natural waste plant, especially those growing in forest, use lots of natural methods to scatter their seeds. These are given below. Ma'am, may I read? Now wait. Human made different ways of seed dispersal. Okay. Now we will learn about the ways by which seed is dispersed. Okay. अब हम लोग एक डिफरेंट तरीकों को पढ़ेंगे जिससे सीड का डिस्पर्सल होता है. ओके. ह्यूमन मेड वेज. ह्यूमन सिलेक्ट सीड्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड शोज देम इन अ सॉइल टू गेट न्यू प्लांट्स. ह्यूमन क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे सीड्स को लेते हैं और उसे बोते हैं.
SOW मीन्स बोना, जमीन में उसे, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा उसे डिग करके, खोद करके उसमें सीड को डालते हैं हल्की सी, फिर वाटर उसके ऊपर देते हो, ऐसे सीड को बोते हो ना आप लोग। यस मैम। सो टू गेट न्यू प्लांट्स के लिए ह्यूमन क्या करते हैं, उनके वे क्या है कि सीड यूजफुल प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करके वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बोते हैं, उससे नए प्लांट्स के लिए। You must have seen farmers sowing seeds of different useful plants like wheat, maize and mustard. आप देख सकते हो आपके स्कूल के बगल में, just beside the school you can see the farmers sowing the seeds of different types of foods like wheat, maize and mustard. देखिए वो कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि स्कूल में क्या था, गेहूं लगा हुआ था, व्हीट लगी थी, ग्रीन ग्रीन थे, फिर येलो हो गए, फिर उसे काट लिया गया। अब आपके घरों में आ गए वो सारे गेहूं, आ गए ना, सबके घरों में आए होंगे। एंड मेज के भी बीज को लगाते हैं, राइस के भी लगाते हैं प्लांट्स को, पहले सीड डालते हैं, फिर उसके छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं ना राइस के, तो उसे मीन्स ये जो रेनी सीजन आएगी उसमें उसे वो क्या करेंगे, जगह जगह पे उसे उखाड़ के लगाते हैं राइस के प्लांट्स को। तो ये सीड को, डिफरेंट टाइप्स की सीड्स को फार्मर्स क्या करते हैं, उसे बोते हैं सॉइल में। नेचुरल वेज, प्लांट्स स्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट यूज लॉट्स ऑफ natural methods to scatter their seed. These are given below. Means natural way. Human made तो आपने देख लिया कि हम लोग कैसे करते हैं, मीन्स वी फार्मर, ओके, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, सीड्स को लेते हैं जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं जैसे व्हीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ये सारे के बीज को वो क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं सॉइल में। उससे क्या होती है कि फिर ग्रो करती है न्यू प्लांट्स, ओके। अब हम लोग पढ़े नेचुरल वेज। नेचुरल वेज में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स। These are given below. Natural methods of to scatter their seeds means वो जो बिखरा होता है ना, सीड्स जो बिखरे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स, बहुत सारे ऐसे नेचुरल मेथड है सीड्स का जो डिस्पर्स होता है, और किस तरह से होता है, इसके बहुत सारे मेथड है। दीज आर गिवन बिलो। डिस्पर्सल बाय विंड, ह्यूमन विंड में क्या होता है, मीन्स यूजफुल प्लांट्स के सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके से बो देते हैं। Are sowing by farmers. लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी बहुत सारी वे होती है। फर्स्ट है डिस्पर्शन बाय विंड। मैंने बताया था ना कि अगर तेज हवाएं अगर आधी चलती है तो क्या होती है, सीड उड़ जाते हैं अगर सूखे रहते हैं तो, और वो पहुंच जाते हैं कहीं और जगह पे, और वहां पे वो ग्रो करते हैं। उन्हें अगर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, प्रेशर और एयर मिलती है, सनलाइट मिलती है, तो वहां पे वो डेवलप कर जाते हैं। द सीड्स ऑफ मदार, oak, thistle and dandelion get dispersed through wind. These seeds are very light, small and have the hair on them. The hair enable them to fly with the wind and get dispersed. ये आपने देखा होगा जो उड़ उड़ कर सबके घरों में आती है, इस तरह के बीज देखा है, यस मैम, करते भी हैं। यस मैम। देखा है आप लोगों ने, कॉटन जैसा उड़ता हुआ इस तरह का आता है, उड़ उड़ कर। जब उसे फूंक मारेंगे तो बहुत ऊपर तक जाता है।
हाँ ये बहुत यस हल्की मैम, मेरे पास प्लांट भी है। प्लांट भी है। यस कल मैम। ही मेरे छत पे आई हुई थी, मैं उसे मीन्स हल्का सा ऐसे मैंने फूंक दिया ना, तो वो और भी उड़ने लगे, और ऐसे भी वो उड़ते हुए चला जा रहा था। और आपने भी देखा होगा, देखा है आप लोगों ने? यस मैम। Yes. डैंडेलियन, लाइक मदार सीड एंड कॉटन सीड, ये सारी बहुत ही लाइट होती है इसकी वेट, और बहुत ही छोटे होते हैं। इसके ऊपर हेयर होती है व्हाइट व्हाइट कलर की। द हेयर इनेबल देम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्टर्ब्स और डिस्पर्स, और ये अलग अलग फिर ये डिस्पर्स हो जाते हैं और उस जगह पे जाते हैं तो वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है। एंड डिस्पर्सल बाय वाटर, प्लांट्स व्हिच आर नियर वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू यह क्या होता है? डिस्पर्स होता है। लाइक कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिला एंड लोटस आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स which disperse their seeds through water. आप कोकोनट भी देख सकते हो, मैंने अभी बताया था। ये कोकोनट क्या है? ये पानी में क्या हो रहा है? वो फ्लोटिंग करते हुए जा रहा है दूसरे जगह पे, और किसी शीशोर या रिवर साइड पे वो लग जाएगा और कोकोनट ट्रीज निकल जाते हैं। आप देखिए वो ट्रेन से जाते वक्त कितने सारे कोकोनट ट्रीज दिखते हैं। कैसे मैम बहुत सारे दिखते हैं। Yes, ma'am. कैसे दिखते हैं? Yes, क्या ma'am, हम बहुत लोगों ने सारे लगाया दिखते उसे? नहीं, हम लोगों ने लगाया है नहीं ना। नो मैम। क्यों कितने सारे कहाँ से आ गए? ये सारी होती मैम है कल के थ्रू, बाय नेचुरल वेज। बाय नेचुरल वेज। डिस्पर्सल हो जाती है सीड्स की, नेचुरल वेज होती है बाय विच coconut trees we are means we see means so many coconut trees while we are traveling by train. The seeds float on the water for some distance before being carried away. They sink into mud on the shore on the fringes of the water body. ठीक है। वो क्या करती है कि जो नदी के किनारों में जाकर वो फिर रुक जाती है, वो तैरते 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 फ्लोट करते करते एट लास्ट वो किसी सीशोर पे जाती है, और मिट्टी में वो फिर से वो मिट्टी की में वो मींस घुस जाती है अंदर की तरफ। और उसे रिवर साइड में है तो उसे तो वाटर मिलेगी ही मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। रिवर में तो बहुत खुले स्पेस होते हैं, तो उन्हें सारे कंडीशंस मिल जाते हैं। ओके, उसकी वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। और ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द वाटर बॉडी के जो वही जो साइड होते हैं वहां पे वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। Sparrow, ants, rats, squirrels, etc. carry fruits and grains to their burrows, nest and other places. They drop some grains on the seeds on their way. These may grow into plants in the new environment. Understood? ये सारे जो होते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं? कैरी करते हैं फ्रूट्स को और ग्रेन्स को। कभी कभी अपने ब्यूरो के पास ले जाते हैं, कभी नेस्ट के पास, कभी दूसरे प्लेसेस पे ले जाते हैं, कभी उस जगह पे ले जाते बीच में गिर जाते हैं। दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड्स इन ऑन देयर वे, और अपने अपने जगह पे, जैसे रैबिट अपने ब्यूरो पे ले जाएगा, नेस्ट पे ले जाएंगे बर्ड्स, और प्लेसेस और किसी दूसरे प्लेसेस पे ले जाते वो क्या करती है? इतनी हेवी तो उठेगी नहीं, कितना देर तक वो पकड़े रहेगी? वीक में गिर जाती है जमीन पे, कहीं पे हो गई, वहां पे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। ओके, एंड डिस्पर्सल बाय human and animals. Fruits which are fleshy and juicy are eaten by humans and other animals and their seeds get thrown away. और क्या करते हैं हम लोग कि जूसी और फ्लेशी फ्रूट्स को हम लोग खा लेते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं। लाइक मैंगो, लीची, पपाया, ये सारे सीड्स को हम लोग क्या करते हैं? वी थ्रो अवे दी सीड्स एंड वी ईट द फ्लेशी फ्रूट्स एंड जूसी फ्रूट्स। खा लेते हैं ना? खाते हो? या फिर आम की गुठली को भी आप लोग खा जाते हो? खाते हो क्या? नो मैम। एंजल इज सेइंग यस। No, ma'am. नो मैम, आप बोले ना कि आप लोग खाते हो ना, तो तब मैं बोली थी यस मैम।
खाते हो तो यस मैम। मुझे लगा कि आप मैंगो सीड को भी यस कह दी। ओके। Seeds of watermelon, papaya, mango, pumpkin, and gourd often get dispersed by this method. ये ह्यूमन और एनिमल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ खाएं, जैसे मैंगो की फ्लैशी मीन्स उसके पल्प को खाया, फ्लैशी फ्रूट्स होती है, पपाया उसी मैंने हम लोगों ने खाते हैं, हम लोग मीन्स ह्यूमंस खाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, तो क्या होती है, मैम ये हो गई डिस्पर्सल सीड की। ओके, यस मैम। these seeds can grow into new plants under suitable and favorable conditions. और ये सीड्स कैसे ग्रो करते हैं, मैंने बताया था कि उसे सुटेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए, एयर, वाटर, टेम्परेचर और सनलाइट मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे। मेनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डॉक, कॉकलबर्ड and mimosa depend on animals including humans to carry their seeds away from their parent plants. ये जो नेम है आप मुझे बताओगे ये सारे क्या है। नेक्स्ट डे you will underline this word and tomorrow you will tell me about this thing, this word. ओके मैम। अन्वेषा कुमारी ये सारे वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए और मुझे बताइएगा ये कैस्टर क्या होता है, बर्डॉग क्या होता है, कॉकलबर्ग क्या होता है, मिमोसा क्या होता है। Tomorrow you will tell me, you all of you. Okay, Yes, everyone. Time is over. See you next.